welcome to my channel Business Communication. And today, we are going to take only two words. Yes, only two words. And two words are pick and turn. The two words are pick and turn. And yes, उसको use करते करते pick and turn को use करते we are going to make 50 sentences which you can use in your daily life. Yes, which you can use in your daily life. So let's start with, they are called phrasal verbs. Pick, we will be using the phrasal verbs in your in day-to-day life. So I'm going to take the first phrasal verb as pick. So the first one that we are going to take is pick up. To take something off a surface, means to take something off a surface. Say for example, खाना नीचे गिर गया है. अगर खाना नीचे गिर गया है तो you'll say pick up the food from the floor. अगर खाना नीचे गिर गया है तो हम क्या बोलेंगे? Pick up the food from the floor, right? अब उसका दूसरा है to meet and collect a person from a specific location. अगर कोई आपके लिए वेट कर रहा हो कोई एक जगह पे, to meet and collect the person from a specific location. So who is going to pick up Meera from the airport? तो you are asking, यहाँ पे एक प्रश्न लगाया है. Who is going to pick up Meera from airport? Yes. अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको कॉलेज या तो जॉब पे लेके जाते हैं, देन यू कैन से माई फ्रेंड राजू पिक्स मी अप डेली टू कॉलेज और डेली टू जॉब, राइट? So we saw 3 sentences from pick up. There is one more sentence that I'm going to cover and that is to buy something. To buy something. अगर हम बाहर गए हैं तो कभी कभी मम्मी बोलती है कि ये लेके आना, या तो पापा बोलते हैं ये लेके आना, या तो भाई बहन कोई भी बोलता है ये लेके आना, या तो आपको खुद को इच्छा हुई कि ये लेके आना है, राइट? सो टू बाय समथिंग. जय पिक्ड अप सम मिल्क ऑन द वे होम. जय पिक्ड अप सम मिल्क ऑन द वे होम. सो वी सॉ 4 sentences using the phrasal verb pick up. ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे. So next from pick I'm going to use is pick out. Pick out. Pick out का एक मीनिंग है to select or to choose. To select or to choose. Meera picked out a t-shirt, brought it to the dressing room. कभी कभी कहीं बाहर जाना हो और एक ड्रेस उठाना हो तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. सो मीरा पिक्ड आउट अ शर्ट एंड ब्रॉट इट टू द ड्रेसिंग रूम. टू सेपरेट फ्रॉम, अलग करना. इफ यू ब्रेक दैट ग्लास, मेक श्योर यू पिक अप ऑल द ग्लासेस आउट ऑफ द कारपेट. मीन्स कारपेट पे ग्लासेस गिरे हैं, सो यू आर सेइंग इफ यू ब्रेक दैट ग्लास, make sure you pick all the glass out of the carpet. Means आपने क्या किया? You separated the glasses from the carpet. Gauri's mom told her to pick up a new pair of shoes for her birthday. कभी कभी मम्मियां बोलते हैं ना कि ये बर्थडे के टाइम पे कुछ अच्छा ले लो. So गौरी की मम्मी ने क्या बोला? Gauri's mom told her to pick up a new pair of shoes for her birthday. Have you picked out a dress for the party? घर पे पार्टी हो या तो कुछ इवेंट हो तो हमें एक ड्रेस लेना, हम लेते हैं. सो द क्वेश्चन इज हैव यू पिक्ड आउट अ ड्रेस फॉर द पार्टी? या पिक्ड आउट में से भी आई हैव गिवन यू 4 sentences दैट यू कैन यूज इन योर डे टू डे लाइफ. ऐसे करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं. द नेक्स्ट वर्ड विथ पिक इज पिक ओवर. पिक over. To take the best of something and leave what is not so good. इसका मीनिंग मैं समझा रही हूं. To take the best of something and leave what is not so good.
तो हम देखते हैं द शर्ट्स हैव बीन ऑन सेल। कभी कभी रक्षाबंधन के टाइम पे सेल आता है, दिवाली के टाइम पे सेल आता है। सो sometimes there are people who go to the sale towards the end, right? Tibetan market आता है, we go towards the end. So the t-shirts were on sale for so long that they have been picked over. तो जो अच्छे अच्छे थे वो लोग लेके चले गए। Okay? Mira's mom picked over the mangoes, selecting the larger one. तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटों को साइड में कर दिया और बड़े बड़े मैंगो उन्होंने उठा लिया। मीरा's mom picked over the mangoes, selecting the larger ones. ठीक, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट with the word pick I am going to take is pick on. ठीक है, so pick on, पहला पिक ऑन से मैं पहला मीनिंग मैं बता देती हूं। टू टीज, यूजुअली भाई बहनों में टीजिंग होता है, यूजुअली घर पे एक दूसरे की टांग खींचते हैं। माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑलवेज पिक ऑन मी बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट। जो सबसे छोटा होता है उसकी तो टांग खींचती है। तो आप बोल सकते हैं माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑलवेज पिक ऑन मी बिकॉज आई एम द यंगेस्ट। दूसरा इसका मीनिंग है, पिक ऑन का मीनिंग है टू कीप ट्रीटिंग समवन बैडली, अनफेयरली, स्पेशली क्रिटिसाइजिंग देम। ये हम स्कूल में देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, जॉब पे देखते हैं, कई जगहों पे हम देखते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जॉब पे आपको बहुत सारा सम पीपल कैन पिक ऑन यू, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो रमेश repeatedly was harassed and picked on by his manager. क्या रीजन था मुझे पता नहीं, या तो फिर आप अगर इफ यू आर पिक्ड ऑन यू कैन ऑल्सो से, बट मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं। रमेश वॉज ऑलवेज हरास्ड रिपीटेडली एंड वॉज पिक्ड ऑन बाय द मैनेजर, बाय हिज मैनेजर। अगर कोई आपकी टांगे खींचती रहे तो आप बोल सकते हो वाई डू यू ऑलवेज पिक ऑन मी, डोंट यू हैव समबडी एल्स, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब पांचवा कवर करते हैं। पिक फ्रॉम, टू चूज फ्रॉम द ग्रुप ऑफ समथिंग। एक ग्रुप होता है उसमें से आपको चूज करना है। से फॉर एग्जाम्पल आप जॉब के लिए गए और बहुत सारे लोग थे, तो एचआर टीम पिक्ड अ न्यू असिस्टेंट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ applicant for the job. HR, what did they do? They picked from the group they picked one assistant for the job. ठीक है, next one, pick at. To take only or to take very small amount of food. कुछ लोग नहीं होते ऐसे चूज करके खाते हैं। To pick only, कुछ टेस्ट करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं डाइटिंग में हूं, तो व्हाट दे डू, दे जस्ट पिक एंड बस नाम के वास्ते वो पिक करते हैं। टू टेक ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। जैनिस एट एवरीथिंग फ्रॉम द प्लेट, शी ओनली पिक्ड हर पीस। उसने प्लेट में से सब कुछ खा लिया, पर पीस मतलब हिंदी में उसको वटाने बोलते हैं। पीस उसको पसंद नहीं था, तो उसने एक आध या तो दो खा के छोड़ दिया। सो नेक्स्ट, पिक एट के साथ ही टू स्क्रैच और इरिटेट समथिंग सच एज कट और स्क्रैप। कभी कभी हमें कुछ कट लग जाता है। जब कट लग जाता है तो क्या हो जाता है कि जब सूखने को आता है तो हमें खुजली आती है, तो हमें वो थोड़ा इरिटेट करता है। हमें पता है कि हमें उसकी खुजली नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हील नहीं होगा, मतलब रूज नहीं आएगा, राइट। सो डोंट पिक एट दैट कट, लेट इट हील। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप बोल सकते हो डोंट पिक एट दैट कट, लेट इट हील, राइट, ऐसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट हम पिक के साथ ले रहे हैं पिक अप ऑन। पिक अप ऑन, ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं।
जो आप डे टू डे वर्ड में, डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसका पहला मीनिंग मैं कवर कर रही हूं, टू अंडरस्टैंड समथिंग स्पेशली, समथिंग दैट इजंट इंटेंटेड टू बी अंडरस्टूड। टू अंडरस्टैंड समथिंग स्पेशली, समथिंग दैट इजंट इंटेंटेड टू बी अंडरस्टूड। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमारे समझ के बाहर होती है। इसका मतलब ये, रोनाल्ड्स मॉम स्पोक इन मलयालम, सो he didn't pick up what she was talking about। ठीक है, तो to understand something that isn't intended to be understood, तो मलयालम में बोलूंगी, उसको मलयालम नहीं आता है तो वो कैसे समझेगा। Roy is very clever, he picks up on a new mathematical formula very easily। Roy is very clever, he picks up a new mathematical formula very easily। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स में निपुण होते हैं, जैसे ही समझाया उनको सब कुछ समझ में आ जाता। कुछ ऐसे होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता। सो रॉय वॉज वेरी क्लेवर, रॉय वॉज क्लेवर। तो ये एक मीनिंग था। दूसरा मीनिंग है करेक्ट समवन व्हेन दे से समथिंग रॉन्ग। पिक अप ऑन, इसका दूसरा मीनिंग है टू करेक्ट समवन व्हेन दे से समथिंग रॉन्ग। यूजुअली माएँ करती है, टीचर करते हैं, पापा करते हैं, राइट। तो इसमें माई मदर पिक्स अप ऑन एनी मिस्टेक आई मेक इन मैथमेटिक्स एंड करेक्ट्स मी। तो अराउंड 15 सेंटेंसेस, 15 to 20 सेंटेंसेस हमने पिक के साथ किया। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द वर्ड टर्न। तो पिक के साथ हम अगर इतना सेंटेंसेस बना सकते हैं तो टर्न के साथ भी बाकी का सेंटेंस हम बना रहे हैं। नाउ आई एम यूजिंग डुअल लैंग्वेज सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट देयर इज नो हार्म इन सब्सक्राइबिंग माय चैनल। प्लीज click the subscribe button। So the next word I am going to take is turn। turn में first I am going to take is turn around। first I am going to take is turn around। to go back to the opposite direction, ये सबको पता है। to go back to the opposite direction हम पीटी में भी किया हुआ है, पीछे मुड़, that is actually turn around। ठीक है, turn around, अगर हम किसी का घर ढूंढ रहे हैं और आप थोड़ा सा आगे चले गए तो आप बोल सकते हो टर्न अराउंड, वी जस्ट पास्ट हिज हाउस। ठीक है, गाड़ी लेके हम जा रहे हैं एंड हम थोड़ा आगे निकल गए, देन यू कैन से टर्न अराउंड, वी हैव जस्ट पास्ट हिज हाउस। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत मोड़ पे मुड़ जाते हैं, तो यू कैन से वी आर गोइंग द रॉन्ग वे, वी नीड टू टर्न अराउंड। वी आर गोइंग द रॉन्ग वे, वी नीड टू टर्न अराउंड। अब कभी कभी खिलाड़ियों को भी दे हैव टू टर्न अराउंड, मतलब अगर हारते गए तो दे हैव टू टर्न अराउंड। तो यहाँ पे हॉकी टीम का एग्जाम्पल लिया है। द हॉकी टीम नीड्स अ बिग टर्न अराउंड आफ्टर देयर लॉस इन द लास्ट नेशनल्स। मतलब उनके गेम जो है उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो यू कैन से दैट द हॉकी टीम नीड्स अ बिग टर्न अराउंड आफ्टर दे लॉस द लास्ट नेशनल्स। नेशनल्स में पहुंचने के बाद हार गए तो दुख तो होता ही है, राइट। सो दूसरा, कभी कभी हम चलते जाते हैं, कभी कभी चलते जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं ना आपके पीछे आते हैं, तो परछाई की तरह, तो तब भी आप बोल सकते हैं एवरी टाइम आई टर्न अराउंड आई फील्स ही इज चेकिंग ऑन मी। वो ही कौन है पता नहीं। एवरी टाइम आई टर्न अराउंड आई फील ही इज चेकिंग अप ऑन मी, मतलब वो फिर हाइड हो जाता है, छुप जाता है, राइट। सो टर्न अराउंड के लिए भी मैंने 4 सेंटेंसेस आपको बताए। आप डेली यू कैन यूज दिस वेन एवर द सिचुएशन कम्स। ओके, नेक्स्ट इज टर्न डाउन। टर्न डाउन ये कब यूज होता है? टू लोअर द पावर ऑफ समथिंग
टू लोअर द पावर ऑफ समथिंग. पावर किसका? समथिंग लाइक लाइट हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, उनके पावर आप डाउन कर सकते हो, राइट? टू लोअर द पावर ऑफ समथिंग सच एज लाइट्स एंड वॉल्यूम. यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लाइट्स एंड वॉल्यूम्स दिया हुआ है. कभी कभी घर पे किसी को टीवी एकदम फुल वॉल्यूम में रखने की आदत होती है और आप पढ़ रहे होते हैं एग्जाम के लिए, तो आप क्या बोलोगे? टर्न डाउन द टीवी, इट्स टू लाउड. आप बोल सकते हैं ना, टर्न डाउन द टीवी, इट्स टू लाउड. कुछ लोग रेडियो एकदम फुल वॉल्यूम में रखते हैं, तो उनको भी बोले, वुड यू टर्न डाउन द एफएम रेडियो, आई वॉन्ट टू स्टडी. आप बोल सकते, वुड यू टर्न डाउन द एफएम रेडियो, आई वॉन्ट टू स्टडी. टर्न डाउन. कभी कभी टू रिफ्यूज द ऑफर और द रिक्वेस्ट. अगर ऑफर जैसे कि जॉब ऑफर है, आप उसको टर्न डाउन कर सकते हैं, मतलब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. आपका पर्सनल रीजन हो सकता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, इट वॉज अ ग्रेट जॉब ऑफर बट आई हैड टू टर्न इट डाउन एज इट हैड टू मच ऑफ फिजिकल वर्क एंड द पे वॉज लेस. तो आप ऐसे बोल सकते हैं. जरूरी नहीं है हर जॉब को आपको एक्सेप्ट करना है. अगर आपका जॉब आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो यू कैन टर्न डाउन योर जॉब ऑल्सो. ऐसा भी बोल सकते हो, आई टर्न डाउन द जॉब ऑफर बिकॉज द पे वॉज नॉट इनफ. ऐसे भी बोल सकते हो. यू कैन जस्ट टर्न डाउन ऑफर्स. तो जब ऐसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए. तो आप अगर बुजुर्ग हैं, आप अगर बड़े हैं, तो यू कैन से, यू कैन जस्ट टर्न डाउन द ऑफर ऑफ द वर्क लाइक दैट. आप ऐसे बोल सकते हैं. यू कैन जस्ट टर्न डाउन द ऑफर ऑफ द वर्क लाइक दैट. You can say that. Next that I am going to take is turn in. The first meaning of turn in I am going to take is to leave a street or highway and enter a driveway parking lot. कभी कभी हम हाईवे पे जा रहे होते हैं और हमें कुछ रेस्ट करना होता, तो वी मे फाइंड सम स्पेस जहां पे पार्किंग लॉट होता है और वहां पे हम आराम कर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, I think we should turn in here because there is a parking lot and we should take some rest here. दूसरा मीनिंग है to go to bed. Turn in पहला मीनिंग था, अभी देखा. सेकेंड मीनिंग to go to bed. Lali usually turns in around 10 p.m. because she has to go to the job early in the morning. मतलब to go to the bed. What time? कितने बजे वो सोने जाती है? 10 बजे. क्यों? क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठ के जॉब पे जाना होता है. इसका थर्ड मीनिंग है जो हम सबको पता है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ. टू गिव एन असाइनमेंट और पेपर वर्क टू अ बॉस और अ टीचर और यू सबमिट इट. Right? Bhavesh turned in his examination supplementary just as the professor was leaving the hall. कुछ लोग होते हैं ना, लिखते रहते हैं और प्रोफेसर जब जाने की तैयारी करते हैं तो वो भाग के अपना सप्लीमेंट्री देते हैं, होते हैं, राइट? द टीचर आस्क्ड एवरीवन टू टर्न इन द होमवर्क. टीचर पूछती है ना, टर्न इन योर होमवर्क, सो शी आस्क्ड एवरीवन टू टर्न इन द होमवर्क. इसका चौथा मीनिंग है टू रिपोर्ट समवन टू द पुलिस. टू रिपोर्ट समवन टू द पुलिस. When Rajesh heard about his brother's crime, he turned him in to the police. ऐसे भी भाई होते हैं. Okay? After retirement, Ramesh went back to the police station to turn in his badge and gun. कभी कभी हम कुछ चीजें वापस करना रह जाते हैं, भूल जाते हैं, so we turn in.
यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने बनाया है, आफ्टर रिटायरमेंट राजेश वेंट बैक टू द पुलिस स्टेशन टू टर्न इन हिज बैज एंड गन, लाइसेंस वाला गन। इसका एक और मीनिंग है, प्रिपेयर फॉर स्लीप। हम लोग तैयारी करते हैं ना, सोने की तैयारी करते हैं, टू प्रिपेयर फॉर स्लीप। इट्स लेट, कभी कभी हम लोग सैटरडे संडे लेट जगते हैं, लेट खाना खाते हैं, या तो फ्रेंड्स आ गए और आप लोग बहुत सारे और बातें कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जो भी हो। इट्स लेट, आई थिंक आई विल टर्न इन। इट्स लेट, आई थिंक आई विल टर्न इन। बहुत लेट हो चुका है, मैं अभी सोने जा रहा हूं। दैट इज वॉट इट मीन्स। टर्न से दूसरा मैं जो द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड इज टर्न इनटू। टर्न इनटू, टू बिकम, मतलब कुछ, टू बिकम, कुछ बनना या तो बनना। जे गॉट प्रमोशन एंड टर्न्ड इनटू अ रियल जर्क। किसी को प्रमोशन मिल जाता है तो वो पागल हो जाता है, सिर पे चढ़ जाता है, प्रमोशन सिर पे चढ़ जाता है। दैट इज व्हाट इट मीन्स, जर्क। आई थिंक विथ न्यू डायरेक्टर ही विल टर्न इनटू टॉप क्लास एक्टर। आई थिंक विथ अ न्यू डायरेक्टर ही विल टर्न इनटू टॉप क्लास एक्टर। कोई भी एक्टर को अगर अच्छा बनना है तो अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है, भले ही उसमें जितना कला हो, कलाकारी हो। तीसरा सेंटेंस बना रही हूं, एन एनिमल वॉज फाउंड डेड ऑन द रोड। नाउ इट कुड टर्न इनटू सम काइंड ऑफ अ मीडिया सर्कस। ऑलवेज टर्न इनटू नर्वस wreck, WRECK spelling. I always turn into nervous wreck. This time I learned to be confident in the interview. इंटरव्यू के टाइम पे सबका पसीना छूटता है, प्रेजेंटेशन के टाइम पे सबका पसीना छूटता है। इसको बोलते हैं नर्वस रेक। हाथ कांपने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं, पसीना छूटता है, वर्ड्स आते नहीं, आप ब्लैंक हो जाते हो। इट इज कॉल्ड नर्वस रेक। अभी दूसरा फ्रेजल वर्ब टर्न से हम ले रहे हैं, टर्न ऑफ। टर्न ऑफ, टू स्टॉप एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट? टर्न ऑफ द मिक्सी, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द टीवी, राइट? टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ बहुत कुछ। सो यू टर्न ऑफ, बट इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू से स्टॉप द फैन, टर्न ऑफ द फैन, ठीक है? दूसरा है टू एग्जिट अ नेशनल हाईवे। आई थिंक यू शुड टर्न ऑफ एट द नेक्स्ट एग्जिट। मतलब हाईवे पे आप जा रहे हो और आपको एग्जिट लेना है, नडियाद की तरह एग्जिट लेना है, देन यू कैन, आई थिंक यू शुड टर्न ऑफ एट द नेक्स्ट एग्जिट। बड़ौदा नहीं जाना है, नडियाद जाना है, तो आप नडियाद का एग्जिट टर्न ऑफ करोगे, ठीक है? एंड टू बी, इसका अलग दूसरा मीनिंग है टू बी अनअपीलिंग। अनअपीलिंग, म्यूजिक तो हर कोई सुनता ही है। सपोज आपको जो म्यूजिक पसंद है आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं है, आपके पेरेंट्स को जो म्यूजिक पसंद है वो शायद आपको पसंद नहीं है, तो दिस इज अनअपीलिंग। उनके कान को वो अपील नहीं करता, इट इज अनअपीलिंग। द म्यूजिक इज हॉरिबल, इट टर्न्स मी ऑफ। मतलब आपको पसंद नहीं आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आपका मूड अच्छा बनाता नहीं है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज टर्न ऑन। जैसे टर्न ऑफ था उसी तरह टर्न ऑन, to start an electronic device, right? Turn on the light, turn on the fan, turn on the mixie, turn on the oven, जो भी। दूसरा है to drive into a street or highway। वो आप हाईवे से निकले, आप हाईवे पे जा रहे हो। Why don't we turn on this road and just see where it goes? कभी कभी एक्सप्लोरेशन करने की आपको इच्छा होती है, तो हम क्या करते हैं, ये रोड नहीं लेंगे, चलो हम ये रोड लेते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो सो यू कैन यस टर्न ऑन टू अ न्यू रोड।
दूसरा है टर्न आउट, टू कम टू अ पार्टी और एन इवेंट। टर्न आउट, यूजुअली हम जब इंडक्शन ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें वी फाउंड so many students have turned out and we feel happy. To come to a party or an event, induction is an event. ठीक है, कभी कोई पार्टी थ्रो करता है तो it is party, वहां पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, turned out. Wow, so many people turned out for your party. तो आप बोल सकते हो, right? It turned out that she was a friend of my daughter. It turned out that she was a friend of my daughter. जब आप किसी के साथ बात करते हो तो आप जब एक दूसरे से बात करते हो तो ऐसा लगता है अच्छा आप इसको भी जानते हो, इसको भी जानते हो, तब आप बोलते हो इट टर्न्ड आउट टू बी माई फादर्स फ्रेंड्स सन, जो भी ही टर्न्ड आउट टू बी माई टीचर्स सन, कुछ भी आप बोल सकते हो। टू project, the project turned out to be harder than we thought. 5th सेमेस्टर में या तो 6th सेमेस्टर में या तो 7th सेमेस्टर, जब भी आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो आपको ऐसा लगा कि ये प्रोजेक्ट इजी होगा, पर जब आप सही में करने बैठते हो तो द प्रोजेक्ट टर्न्ड आउट टू बी टफर देन व्हाट यू थॉट। दूसरा सेंटेंस है, इसी के साथ मैं आगे बढ़ रही हूं। डोंट वरी, द प्रेजेंटेशन विल टर्न आउट ऑल राइट। जैसे मैंने बोला ना कि आप जब प्रेजेंटेशन करते हो तो आपको डर लगता है, डोंट वरी, द प्रेजेंटेशन विल टर्न आउट ऑल राइट, ऑल वेल। द विलेजर सेड दिस टाइम क्रॉप्स विल टर्न आउट वेल। बारिश का मौसम है तो विलेजर ने बोला, कोई फार्मर ने बोला, डोंट वरी, यस आई एम हैप्पी दैट दिस टाइम वी हैव गॉट इनफ ऑफ रेन, द क्रॉप विल टर्न आउट वेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। टर्न अप, to appear somewhere. Turn up to appear somewhere. कभी कभी कुछ चीजें गुम हो जाती है तो आप बोल सकते हो डोंट वरी, इट विल अपीयर समवेयर इन योर ड्रेस और अंडर योर बुक्स, इट विल टर्न अप समवेयर। मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। आप बोलते रहते हो ना कि कुछ चीजें गुम हो जाता है, हाँ डोंट वरी मिल जाएगा, राइट। टू इंक्रीज द पावर ऑफ समथिंग सच एज लाइट्स एंड वॉल्यूम, टर्न अप, ठीक है। टर्न अप द लाइट, कुछ आजकल के टेबल लाइट में आप उसका वो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। सो टर्न अप द लाइट, द रूम इज अ बिट डार्कर। वी सॉ ऑलमोस्ट 50 sentences using only 2 words, pick and turn. So if we can make 50 sentences using only 2 words, how much can you go ahead with English? Do you have any idea? And I'm happy that I am able to bring out these sentences for you. And if you are happy, do subscribe my channel, because that shows that you are happy with my channel. Thank you very much. Stay safe.